हेलो एवरीवन, मैं टी.एस. धाकड़। नाउ वी स्टडी यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में आपको जहाँ तक एक्सप्लेन किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स सी। एग्जाम्पल नंबर 108। The orbital velocity v of a satellite may depends on its mass, the distance r from the center of the earth, and acceleration due to gravity g. Obtained an expression for its orbital velocity। तो देखिए बच्चों, according to question, orbital velocity v depends on mass m and radius and gravity। According to question, orbital velocity depend on mass, radius and gravity. Let its dimensions small a, b, c. Dimension of mass small a, dimension of radius small b, dimension of gravity small c। तो देखिए बेटा, p is directly proportional to m raised to the power a, r raised to the power b, e raised to the power c. After removal proportional sign, apply a constant k, proportional constant according to principle of homogeneity. Dimensional formula of LHS is equal to dimensional formula of RHS. Right hand side, left hand side velocity L1t minus 1, right hand side k proportional constant dimensionless, mass m1 the power a, r radius L1 power b, gravity L1t minus 2 whole raised to the power c। ओके बेटा, तो अब देखिए m रेज टू दी पावर a, a इक्वल टू 0 हो गया। लेफ्ट साइड में मास है ही नहीं, इसका मतलब मास का पावर क्या है? 0। देखो l रेज टू दी पावर b प्लस c इक्वल टू 1, e रेज टू दी पावर माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए बेटा 1, तो b इक्वल टू 1/2। तो देखिए a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 1/2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू k m raised to the power 0, r raised to the power 1/2, g power 1/2, m raised to the power 0 is equal to 1, rg power 1/2, v equal to k square root of rg for orbital speed according to practically conditions, according to practically conditions k is equal to 1, तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा। एक बार इसको रिवाइज कर लें बच्चों, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 109। द स्मॉल स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर falls with velocity v through a liquid having coefficient of viscosity eta and the viscous drag f, drag means force, एक तरह से force होगा on the ball assuming it depends on eta r and v, take k equal to 6/5। तो viscous drag means जो viscosity force एक्सपीरियंस करेगा बॉडी ड्यू टू लिक्विड, उसको विस्कस ड्रैग कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विस्कस ड्रैग विस्कोसिटी फोर्स डिपेंड ऑन ईटा आर एंड बी। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस ऑफ बॉडी, बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ओके, लेट डायमेंशंस ऑफ ईटा आर बी small a, b, c respectively, means dimension of eta a, dimension of r b, dimension of velocity b।
तो देखिए अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली viscous drag is directly proportional to eta raised to the power a, r raised to the power b, p raised to the power c. After removal proportional sign, apply a constant k, eta a, rb, pc. That's clear बच्चों. अब देखिए बेटा, according to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. तो देखिए बेटा, m1 l1 t minus 2 k dimensionless eta m1 l minus 1 t minus 1 whole power a r l1 whole power b velocity l1 t minus 1 whole power c. तो देखिए बेटा, इन राइट हैंड साइड m raised to the power a, लेफ्ट हैंड साइड m raised to the power 1, a इक्वल टू 1 हो गया आपका, l raised to the power minus a plus b plus c इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड, t raised to the power minus a माइनस c इक्वल टू माइनस 2, माइनस कॉमन ले लीजिए, प्लस c इक्वल टू माइनस 2, a प्लस c इक्वल टू 2, a इक्वल टू आपके पास 1 है बेटा, प्लस c इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू 1. ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 1 कैंसिल, तो b इक्वल टू 1. तो आप देख सकते हैं यहाँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1. From equation first, f equal to k eta r b, सभी के डायमेंशंस 1 आए, f equal to k eta r b. फ्रॉम क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा, टेक k इक्वल टू 6 पाई, f इक्वल टू 6 पाई eta r b. नंबर थर्ड. दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर. ओके बच्चों, एक बार फोकस करें बेटा इसको. ओके, अब देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 110. एग्जाम्पल नंबर 110. द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फॉलन through h and acceleration due to gravity g. So by the method of dimensions that v equal to k dh. तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी एंड हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस. Velocity of freely falling body depends on gravity and height from Earth's surface. Okay, let dimensions of g and h, small a and b, means dimension of gravity small a assume कर लिया आपने, dimension of h small b assume कर लिया. According to dimensionally, b is directly proportional to g raised to the power a, h raised to the power b. So v is equal to, after removal proportional sign, apply a constant e raised to the power a, h raised to the power b. That's clear. You know that according to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side equal to dimensional formula of right hand side. In left hand side, velocity l1 t minus 1, k dimensionless because it is proportional constant. Gravity l1 t minus 2 whole power a t, height l1 whole power b. तो देखिए, in left hand side mass raised to the power 0, in right hand side mass raised to the power 0. तो यूजलेस हो गया है. तो देखिए l raised to the power a plus b equal to 1, t raised to the power minus 2 a equal to minus 1, a equal to 1 by 2. ओके, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए बेटा, 1 by 2 plus b equal to 1, तो b equal to 1 by 2. a and b both are equal to 1 by 2. From equation first, b equal to k 1 by 2 h 1 by 2. So v equal to k h whole power 1 by 2. whole power 1 by 2 में स्क्वायर रूट प्रूव्ड. तो डायमेंशनली आपको प्रूव करना है. देखिए वैसे चाहें तो आप k का वैल्यू भी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कंडीशंस
ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और वी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। थर्ड, दैट्स क्लियर। ओके बच्चों, एक बार फोकस करें, इसको रिवाइज करें भैया। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 111। ओके, using the method of dimensions derive an expression for the energy of body executing smh SHM simple harmonic motion, assuming this energy depends upon its mass, frequency and amplitude of vibrations, तो आपको आर गिवन है। क्लियर? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भैया? using the method of dimension derive an expression for the energy of a body executing SHM simple harmonic motion। एनर्जी आपने यू अज्यूम कर लिया। ओके, डिपेंड्स ऑन मास, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, आर गिवन है आपको। नॉर्मली बेसिक थ्योरी में हम स्मॉल ए और कैपिटल ए लेते हैं, लेकिन आपको फिजिक्स का मीनिंग क्या है क्वेश्चन में जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। लेट इट्स डायमेंशंस स्मॉल ए बी सी, डायमेंशन ऑफ मास स्मॉल ए, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी स्मॉल बी, डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड स्मॉल सी, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m raised to the power a, raised to the power b, or raised to the power c। after removal proportional sign apply a constant k। okay beta, according to principle of homogeneity dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side। left hand side energy m1 l2 t minus 2 k, mass m1 whole power a, new frequency t minus 1 whole power b, amplitude as a distance l1 whole power c। तो देखिए, इन राइट हैंड साइड m raised to the power a, लेफ्ट हैंड साइड 1, a equal to 1, l raised to the power c, left l raised to the power 2, तो c equal to 2, minus b equal to minus 2, तो b equal to 2। तो आप देख सकते हैं बेटा, a equal to 1, b equal to 2 and c equal to 2। from equation first q equal to k m raised to the power 1 power 2 r raised to the power 2। okay, q equal to k m square r square। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका रिजल्ट आ गया। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k को बेटा एज इट इज रहने दीजिए आप। ओके ओके, बार फोकस करें भैया। अब देखिए, बेसिक थ्योरी से अगर इसको कंपेयर करें तो एनर्जी ऑफ SHM हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, एम्पलीट्यूड x प्लस माइनस ए होगा, k इक्वल टू क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसे कंपेयर करें तो वही रिजल्ट आ जाएगा आपका। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। आप देख लो, ओमेगा क्या होता है पाई न्यू m और पाई स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू हाफ m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, 2 पाई स्क्वायर m स्क्वायर ए स्क्वायर। ये 2 पाई स्क्वायर का बिहेव करेगा बेटा, का बिहेव करेगा के का m न्यू स्क्वायर स्क्वायर मींस एम्पलीट्यूड और स्क्वायर। वही रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? ये बेसिक थ्योरी का रिजल्ट है, ये हमने डायमेंशनली ड्राइव किया है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट,
Example number 112. A body of mass m hung at one end of the spring executes SHM. एक स्प्रिंग को एक बॉडी है जिसका मास m है, स्प्रिंग से सस्पेंड किया गया है, हंग लटकाया गया है, executes SHM simple harmonic motion. Prove that the relation T equal to 2 pi m upon k is incorrect. ये आपको क्या करना है? इनकरेक्ट ये प्रूव करना है कि ये रॉन्ग है। तो हम आपको बता चुके हैं बेटा, चेक आउट द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूलाज एक्सप्रेशंस बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। वी डिटरमाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। गिवन फॉर्मूला और इक्वेशन के हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। व्हेन dimensional formula both sides are equal to each other, so formula is correct, otherwise incorrect, otherwise wrong. Okay, incorrect. Where k is the force constant of the spring, also derived correct relation. इसमें हमें also derive correct relation भी derive करना है। तो देखो पहले तो इसका चेकआउट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन P इक्वल टू pi m upon k. Okay, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS T क्या है? टाइम पीरियड T1, M0, L0, T1। दैट्स क्लियर बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड पाई m अपॉन k। पाई तो डायमेंशन लेस हुआ, मास क्या हुआ? m1। k क्या है बेटा? फोर्स कांस्टेंट। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन आप देख लें अलग से। F इक्वल टू माइनस के एक्स, k इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एक्स। तो देखिए k का क्या होगा? f m1 l1 t माइनस 2। x क्या हो गया? l1 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 कैंसिल का क्या हो गया बेटा? m1 माइनस m1 m1 कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ? t2 m0 l0 t2। लेफ्ट हैंड में क्या था? t1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS नॉट इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। ओके, ये करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? करेक्ट हो गया ना? फॉर्मूला रॉन्ग हो गया ना भैया? अब आपको इसका करेक्ट रिलेशन ड्राइव करना है। तो आप देख सकते हैं रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? डिराइव करना है आपको टाइम पीरियड ऑफ हंग बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी एंड फोर्स कांस्टेंट। ये तो है। लेट डायमेंशन ऑफ मास स्मॉल a, डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट t, सॉरी डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट b अज्यूम कर लिया। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू द पावर a रेज़ टू द पावर b। आफ्टर रिमूवल प्रोपोर्शनल साइन अप्लाई अ कांस्टेंट। ओके, according to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side। t क्या है बेटा? टाइम पीरियड m0 l0 t1। k कांस्टेंट हो गया, या यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये k फोर्स कांस्टेंट है ना, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम अनदर सिंबल से दे देते हैं, t दे दिया। क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, क्योंकि के फोर्स कांस्टेंट ले रखा है ना, तो सी क्या हो गया बेटा? डायमेंशन लेस मास m1 पावर a। के क्या होगा? m1 t माइनस 2 फुल पावर b। तो देखो m रेज़ टू दी पावर a b, तो a प्लस b इक्वल टू 0, e रेज़ टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या हो गया भाई? -1/2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। -1/2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1/2। तो आप देख सकते हैं बेटा a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू -1/2। तो देखिए t इक्वल टू 1/2 -1/2, e m1/2 k 1/2 इक्वल टू m अपॉन k 1/2। ये आया आपका
ठीक है ना बेटा? तो T इक्वल टू C to m upon K according to practically conditions, according to practically conditions, conditions K इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई। तो T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m अपॉन K। ये आपका रिलेशन आ गया भैया। एक बार इसको फोकस करें बेटा। देखिए अब नेक्स्ट देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 113, assuming that critical velocity Vc of a viscous liquid flowing through a capillary tube depends only upon the radius r of the tube, density rho, and coefficient of viscosity of the liquid, and the expression of critical velocity। आप देख सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, critical velocity of liquid through a capillary tube, Vc depend on radius of tube, density of liquid, and coefficient of viscosity। According to question, critical velocity through a capillary tube depend on radius of tube, density of liquid, and coefficient of viscosity। Let dimension of radius small a, dimension of density small b, dimension of coefficient of viscosity c assume कर लिया आपने। Okay, according to dimensionally Vc directly proportional to r raised to the power a, rho raised to the power b। तो देखिए बेटा, t इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। a b की वैल्यू -1 तो ये +3, t इक्वल टू 1 तो -1 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 - 2 तो a इक्वल टू -1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू k r रेज टू द पावर a -1, o रेज टू द पावर b -1, theta रेज टू द पावर c 1, तो v इक्वल टू k आर रो। ये आपका रिजल्ट आ गया। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को आप एज इट इज रहने दीजिए। ओके ओके, पर फोकस करें बेटा इसको। शांत। एग्जाम्पल नंबर 14, by the method of dimensions obtained an expression for the surface tension S of a liquid rising in a capillary tube. Assume that the surface tension depends upon mass of liquid, pressure of liquid, radius r the capillary tube। Take k equal to 1/2। proportional constant की वैल्यू आपको गिवन है। According to question, let's see surface tension S depend on
मास, प्रेशर एंड रेडियस। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है आपको सरफेस टेंशन एस डिपेंड ऑन मास, pressure and radius of tube. Let dimension of mass small a, dimension of pressure b, dimension of radius c. S is directly proportional to m raised to the power a, p raised to the power b, r raised to the power c. After removal proportional sign, apply a constant k, k proportional constant, where k is proportional constant. Okay, where k क्या है बेटा? Proportional constant. According to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. Surface tension m1 l0 t minus 2 k dimensionless. mass देखिए बेटा m1 whole power a, pressure m1 l minus 1 t minus 2 power b, radius l1 whole power c. mass के लिए देखिए बेटा m raised to the power a, m raised to the power b, तो a plus b is equal to 1. लेंथ के लिए देखिए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, e रेज टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, तो बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 1 इक्वल टू 1, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ए इक्वल टू क्या हो गया? 0. ओके, अब ए इक्वल टू 0, बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन में इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. ओके, एक बार और चेक कर लें आप। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ m1 l0 t minus 2, मास m1, प्रेशर m1 l minus 1 t minus 2, रेडियस l1, m raised to the power a plus b equal to 1, l raised to the power minus b plus c equal to 0. ओके, t raised to the power minus 2b equal to minus 2, तो b equal to 1. ओके, इक्वल टू 1, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो a इक्वल टू 0. ओके, अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो इक्वल टू 1. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इक्वल टू ma इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, r इक्वल टू c, s इक्वल टू k, r. ओके, k इक्वल टू 1/2 r. ये आपका रिलेशन आ गया बेटा। अब बेसिक रिजल्ट से हम कंपेयर करें, बेसिक रिजल्ट से कंपेयर करें, देखो तो बेसिक रिजल्ट क्या होता है? सरफेस टेंशन प्रेशर एक्सिस के लिए 2t अपॉन r, ये रिजल्ट होता है। सरफेस टेंशन को t से भी डिनोट करते हैं, इक्वल टू 2t अपॉन r। आ गया कि नहीं आ गया बेटा आपका? ओके, एक बार फोकस कर लें बेटा। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 115, the depth x to which a bullet penetrates a human body depends upon coefficient of elasticity theta and kinetic energy ek by the method of dimension, so that okay, आपको ये प्रूव करना है भाई किसी भी गन से बुलेट फायर्ड किया जाता है तो ह्यूमन बॉडी में पेनिट्रेट करेगा, तो ह्यूमन बॉडी में कितना डेप्थ गया वो x पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डेप्थ डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी. Okay, so let us consider dimension of coefficient of elasticity A, kinetic energy B. So x is directly proportional to eta A K B. Okay, अब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही करना है, तो प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेप्थ L1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन m1 l-1 t-2 फुल पावर a, काइनेटिक एनर्जी m1 l2 t-2 फुल पावर b। ओके भैया, तो देखो m रेज टू दी पावर a m रेज टू दी पावर b इक्वल टू 0, l रेज टू दी पावर माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 1, t रेज टू दी पावर माइनस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं 2a इक्वल टू माइनस a इक्वल टू b, रिलेशन आया एक तो। ओके भैया, अब b की जगह आप माइनस a रख दीजिए, माइनस a तो माइनस 2a इक्वल टू 1 है, माइनस 3a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या आ गया भैया आपका -1/3 इक्वल टू -1/3 आ गया ना। तो b की वैल्यू b इक्वल टू माइनस a इक्वल टू क्या आ गया 1/3, ए एंड बी दोनों आ गए भैया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा 1/3 पावर -1/3 a पावर 1/3, x is directly proportional to a upon eta whole raised to the power 1/3। आ गया नहीं बेटा, आ गया, एक बार फोकस कर लें भैया इसको, एक बार फोकस कर लीजिए बेटा इसको। ओके, अब देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 116, a U-tube of uniform cross section contains mercury up to a height h in either limb. The mercury in one limb is depressed a little and then released. Obtain an expression for the time period of oscillations, assuming that depends on h, rho and t। देखिए ये एक यूट्यूब शेप है, उसमें लिक्विड को मरकरी को फिल्ड किया गया है। तो वन आर्म में, लिम्ब यानी आर्म, एक साइड में उसको कंप्रेस्ड किया जाता है, तो दूसरी साइड में क्या होगा, लिक्विड मरकरी राइज करेगा। आफ्टर रिमूवल द एक्सटर्नल फोर्स, वो लिक्विड ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो बेसिक थ्योरी में भी आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये टाइम पीरियड कह रहा है भैया डिपेंड्स ऑन एच, रो एंड जी। एच क्या है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्या है ग्रेविटी। लेट डायमेंशंस ऑफ एच, रो, जी ABC, डायमेंशन ऑफ एच A, डायमेंशन ऑफ रो B, डायमेंशन ऑफ जी T। तो T is directly proportional to h raised to the power A power B raised to the power C। After removal proportional sign, apply a constant K। Okay, okay, according to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side। लेफ्ट में टाइम पीरियड T1, राइट में K तो डायमेंशनलेस H L1, रो डेंसिटी M1 L-3 होल पावर B, ग्रेविटी L1 T-2 होल पावर C। तो देखो m रेज टू दी पावर B इक्वल टू 0, L रेज टू दी पावर A -3 प्लस C इक्वल टू 0। तो B की वैल्यू तो 0 रख दीजिए, तो A प्लस C इक्वल टू 0, रेज टू दी पावर -2 1 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा -1/2, -1/2 इक्वल टू 1/2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू K h रेज टू दी पावर A 1/2, O रेज टू दी पावर B 0, रेज टू दी पावर C -1/2, और O रेज टू दी पावर 0 हो गया भाई। तो T इक्वल टू K h अपॉन पावर 1/2 हो गया। दैट्स क्लियर। तो K इक्वल टू K रूट h अपॉन G। बेसिक थ्योरी से बात करूं,
आप यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हम बेसिक थ्योरी से बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कंडीशंस इक्वल टू 2 पाई, तो t इक्वल टू पाई अंडर रूट एच अपॉन टी, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा बेटा। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए भैया। ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, the critical angular velocity omega of a cylinder inside another cylinder containing a liquid at which its turbulence occurs depends on viscosity eta, density rho, and the distance d between the walls of the cylinder. Find the expression for omega c. देखिए बेटा, according to question, omega c depends on coefficient of viscosity, डेंसिटी एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी, द डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स ऑफ सिलेंडर, लेट डायमेंशंस ऑफ ईटा रो डी, एबीसी अज्यूम कर लिया हमने। तो डायमेंशन ऑफ ईटा ए, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी बी, डिस्टेंस सी। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली ओमेगा ओमेगा सी directly proportional to eta A OB DC. Omega C, after removal proportional sign, apply a constant according to principle of homogeneity. Dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. Omega C critical angular velocity, its dimension t minus 1. ये constant dimensionless eta m1 l minus 1 t minus 1 whole power a rho m1 l minus 3 whole power b distance t, m raised to the power a plus b is equal to 0, l raised to the power minus a minus 3 plus c is equal to 0. Okay बेटा, t raised to the power minus a plus c is equal to minus 1. That's clear. अब यहां से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं देखिए b इक्वल टू माइनस ए पुट कर दें बेटा, माइनस ए माइनस 3 माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 0, जगह हमने यहाँ माइनस ए पुट कर दिया, माइनस ए प्लस 3a प्लस सी इक्वल टू 0 और 2a प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से हमने b इक्वल टू माइनस ए यहाँ पुट किया, तो माइनस ए प्लस 3a प्लस सी, ये रिलेशन आ गया। अब ये देख लें, माइनस ए प्लस सी इक्वल टू माइनस ए प्लस सी इक्वल टू माइनस 1। ये हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 1, ए इक्वल टू क्या आ गया आपके 1/3, इक्वल टू क्या आ गया भैया 1/3। दैट्स क्लियर। ये वैल्यू यहाँ रख दें, -1 इक्वल टू 1/3 -1 -2/3, तो c इक्वल टू आपका क्या आ गया माइनस के 2/3, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -2/3, इक्वल टू 1/3, c इक्वल टू 2/3। अब कौन b, ये ले लें आप, a इक्वल टू 1/3 प्लस b तो b इक्वल टू -1/3। दैट्स क्लियर। ये वैल्यू जो आप पुट कर दीजिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ओमेगा c इक्वल टू k का a का वैल्यू क्या है 1/3, ओ b क्या है -1/3 -2/3। ओके, ओमेगा c a का 1/3 1/3 हम क्या ले लेते हैं ओमेगा c k का स्क्वायर पावर 1/3, ये रिजल्ट आ गया। k क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। एक बार इसको फोकस करें भैया, एक बार फोकस करिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल
A body of mass m is moving in a circle of radius r with angular velocity omega. Find the expression for centripetal force acting on it by the method of dimensions. सिंपल है, मच्छर क्वेश्चन है. Find the expression for centripetal force according to question. Centripetal force depend on radius and angular velocity. Sorry बच्चों. According to question, centripetal force depend on radius of circular path and angular velocity omega. Let dimension of r and omega, small a and b, dimension of radius small a, dimension of angular velocity omega. So fc is directly proportional to r raised to the power a, omega raised to the power b. After removal proportional sign, apply a constant. Okay, the proportional constant, it is dimensionless. ठीक है भैया. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, m1 l1 t minus 2 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, के डायमेंशन लेस, आर रेडियस l1 ओमेगा t minus 1 होल रेज टू द पावर b. ओके ओके, सॉरी हम एक स्टेप को मिस कर दिया, सॉरी बच्चों. तो जल्दबाजी में वो मिस हो गया बेटा. Centripetal force depends on mass, radius and angular velocity. Centripetal force, तो देखिए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड एंगुलर वेलोसिटी. दैट डायमेंशन ऑफ मास स्मॉल ए, डायमेंशन ऑफ रेडियस स्मॉल बी एंड डायमेंशन ऑफ omega c. According to dimensionally, f is directly m raised to the power a, r raised to the power b, omega raised to the power c. After removal proportional sign, apply a constant. According to principle of homogeneity, dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. Left hand side force m1 l1 minus 2. A dimensionless mass m1 whole power a, और radius l1 whole power b, omega t minus 1 whole power c. तो देखिए m raised to the power a is equal to 1, l raised to the power b is 1, और minus c minus 2 2. ओके बेटा, एबीसी आपका डायरेक्ट आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. एफ सी ए एम ए आर बी वन इक्वल टू 2. ओके बेटा, ओके. एफ सी ए आर का से बात करें हम, तो देखिए से सेंटीमीटर फोर्स एम स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा आर. यहाँ पुट करेंगे हम स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर, ये आ गया. तो प्रैक्टिकली कंडीशन आ जाएगा, बना जाएगा ना बेटा. अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कंडीशंस 1 एफ सी इक्वल टू एम स्क्वायर आर, ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा. फाइनली रिजल्ट आ गया. पर इसको फोकस करें बेटा, पर रिवाइज कर लें इसको. अब देखिए बेटा, नेक्स्ट consider a simple pendulum. The period of oscillation of simple pendulum depends on its length, acceleration due to gravity d. Derive the expression for its period of oscillation by method of dimensions. Okay भैया, according to question, time period of simple pendulum depends on length and gravity. ये गिवन है आपको, L and acceleration due to gravity. देखो, the period of oscillation of simple pendulum depends on its length and acceleration due to gravity. Dimension of length ये assume कर लें, dimension of gravity according to principle of dimensionally हो गया बेटा
After removal, proportional sign, apply a constant according to principle of homogeneity. Dimensional formula of left hand side. One right hand side, k dimensionless, L1 A gravity, L1 T minus 2. तो देखिए बेटा L A plus टू जी माइनस टू वन तो इक्वल टू -1/2 वैल्यू यहाँ पुट की इक्वल टू 1/2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए L1/2 -1/2 क्या हो गया बेटा L/G पावर 1/2 ए इक्वल टू स्क्वायर रूट L/G रिजल्ट आ गया आपका अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कंडीशन अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली कंडीशंस टाइम सिंपल पेंडुलम के लिए पाई होता है, ये तो आप जानते ही हो, पहले भी ये कराया हुआ है आपको। ये आपका फाइनली रिजल्ट आ गया बेटा, एक बार इसको रिवाइज कर लें आप। तो देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।